हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ईज ऑफ लर्न चैनल पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर लूप्स इन C++ language and someone commented on my last video that I should bring MCQ also on each topic. So from today onwards, whatever topic I will cover, based on that topic I will bring MCQ also. Okay, so in this video I'm going to tell you about the definition of loops, why it is important, and types of loop with the proper syntax and examples with output also. So let's start. What is loop? A loop is something that allows us to repeat a statement again and again while a given condition is true. It's totally depend on which type of loop we are using in our program. A loop statement allow us to execute a statement or group of statement multiple times. Now in C++ we use four type of loops. Basically it is three type of loops, but fourth one is combination of all these three one. Okay, so these are for loop, while loop, do while loop, and nested loop. Let's see what this flow chart is all about. This shows the flow of loops, where it will be start and how it works and how it terminates. So the first step, that is to make an entry of loop among four type of loop according to your need of program. It can be either for loop, it can be either while loop, do while loop, or nested loop. Okay, so then put a condition. If condition is true, it will execute the statements, and then go to the check condition again and repeat the same process till finding the condition is true. Okay, and if condition is false, then it get out of the loop. Simple. And let's try to understand with the help of an example why do we need loops. Is it possible to go without loops in a complex program where we need to print multiple statements? अब अगर मुझे 10 बार एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है हेलो वर्ल्ड, तो क्या करूँगी मैं? ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 10 बार सी आउट लेके प्रिंट कराना पड़ेगा ये स्टेटमेंट को, है ना? But do you really think it will work for more than 10 statement also? Yeah, surely we can write statement for more than 10 times or more than 10 time as well, but it's very time consuming method. अब इस print statement को 10 बार लिखने की print लिखवाने की ज़रूरत मुझे बिल्कुल नहीं है, because we have loops. We can do it by writing a single statement by using loops. We will see in further example as well, like while covering while loop. सो लूप्स प्रोवाइड एज कोड रीयूजेबिलिटी, विच मीन्स कि अगर एक स्टेटमेंट मुझे 10 बार चाहिए स्क्रीन पे, तो मुझे 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेटमेंट से 10 बार मैं प्रिंट करवा सकती हूँ. ओके, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट वी डू नॉट नीड टू राइट सेम कोड अगेन एंड अगेन. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेजेस ऑफ लूप्स, वाई वी डू नीड लूप्स. ओके, सो लेट्स कम टू द फॉर लूप. व्हाट डज इट मीन? फोर लूप्स आर यूज टू कंट्रोल अ स्टेटमेंट, और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी नंबर को स्पेसिफिक टाइम तक जब प्रिंट कराना हो तो हम फोर लूप यूज़ कर सकते हैं. फोर एक कीवर्ड है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सी जब लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे थे कीवर्ड्स, सेम इसमें भी हैं, बस C++ में कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी यूज़ होते हैं. ठीक है, लेकिन फोर लूप एक इंक्लूडेड है इसमें, FOR इज ए कीवर्ड. ओके, सो लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ फोर लूप. We have to write for, that is a keyword, and open the brackets, and within brackets we have to put three statements, and all three statements are compulsory to write. Okay, so we can't miss any one of them. Okay, so the first statement is for initialization, second one is giving conditions, and third one is for increasing or decreasing a variable that we have initialized in initialization statement. That one is first one. फर्स्ट जो इनिशियलाइजेशन है, तो क्या करेंगे, इसमें कोई भी वेरिएबल का जो वैल्यू होगा हम लोग उसे इनिशियलाइज करेंगे, हम लोग सेट कर देंगे उसकी वैल्यूज़ को. ओके, सो इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू इनिशियलाइज द लूप काउंटर टू सम वैल्यू. फॉर एग्जांपल इफ आई राइट इंट I इज इक्वल्स टू 1, सो दैट इज व्हाट, इनिशियलाइजेशन पार्ट. ओके, सो देन सेकंड वन इज टेस्ट एक्सप्रेशन, और वी कैन से दैट कंडीशन एक्सप्रेशन. In this expression we have to test the condition, I mean we have to check whether the variable is less than or greater than or equals to initialized value. लाइक कोई भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो भी स्टेटमेंट लिखी है सब एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी है हमारी इंक्रीज या डिक्रीज स्टेटमेंट उस पर आ जाएगा, एंड उसके बाद में वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी, फिर उसके बाद फिर स्टेटमेंट चेक होगी, एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी. ओके, सो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, कंपाइलर जो होगा लूप से बाहर आ जाएगा, एंड लूप में लिखी हुई कोई भी स्टेटमेंट फिर प्रिंट नहीं होगी. Same, this flowchart defines that we have to initialize a value to a variable first and then check condition whether it is true or false. If true,
then print the statements and go to increment or decrement part, and then again check the condition, and in case if condition gets false, then it simply get out of the loop. Okay, so let's see an example of for loop. First we have to write header files, that is must to write, and here I have written int main function and open the brackets, and now I am applying for loop, writing for keyword and then in bracket keyword, and then in brackets we have to write 3 statement. अब curly brackets close कर दिया मैंने. Now see how it works and provide us output. Compiler will go to for loop and go to initialization part, and now he know the value of I, that is 1, and go to conditional part then and check the condition. Here the condition is I smaller than is equals to 10, and condition get true because 1 is smaller than 10. Then it will go to update expression, which will increment or decrement variable, that is here I plus plus means increment variable. Okay, increment operator, and here we have written I plus plus. It means now value of I will become 2, and it again repeat the same process, and after 10 process when value of I will become 10, then still it executes and print 10 value but 10 number. but जैसे ही वैल्यू 11 हो जाती है ना, जैसे कि हमारा प्रिंट होगा कब तक, जब तक 10 नहीं आ जाता. ठीक है, जैसे अब इंक्रीमेंट होके वैल्यू 11 हुई तो उसके बाद में क्या होगा, लूप खत्म हो जाएगा. सो दिस इज हाउ फोर लूप वर्क्स, एंड दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एग्जाम्पल. जैसे ही 11 आएगा कंपाइलर खत्म. सो द नेक्स्ट लूप इज वाइल लूप. वाइल लूप में स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, सो द इन वाइल लूप let's see the flow chart. In while loop, first we have to initialize a variable and assign a value to that variable. Okay, and then create a condition for that variable according to the need of our program. And if condition will get true, then go to the statements, and that is written within the while loop, and check the condition again and again. Repeat this process till condition will get false. So let's understand how can we actually implement while loop in a C++ program. So here we have initialized variable I. So here we have initialized variable I and assigned number 1 as value of I. Now here I have written in a multi-line comment. Now after print value of variable I is 1, compiler will increase the value of I, and now it becomes 2. So again go to the while loop and check the condition, and still condition is true because of variable of y is now 2, and we know that 2 is smaller than 6. So again it executes by the same process. Now after 5 steps variable I is now 6. अब फिर से while loop पे आएगा, एग्जीक्यूट एंड कंडीशन चेक करेगा कि देखेगा i स्मॉलर है क्या या फिर इक्वल है क्या 6 के. तो अब हमारे पास i की वैल्यू 6 है, तो जो की वैल्यू 6 के इक्वल है. ठीक है, तो इट अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस एंड प्रिंट वेरिएबल ऑफ y दैट इज 6. सो नाउ इट अगेन इंक्रीमेंट एंड नाउ इट बिकम 7 नाउ. सो इट अगेन चेक द कंडीशन एंड नाउ हेयर कंडीशन गेट फॉल्स. क्यों? क्योंकि अब वैल्यू 7 हो चुकी है, कंडीशन कोई भी मैच नहीं कर रही, ना तो स्मॉलर है ना ही इक्वल है. तो अब ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी है उस पर नहीं जाएगा, सीधा लूप से बाहर हो जाएगा. ठीक है, सो हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे. ओके, दिस इज द आउटपुट. एंड एल की वजह से आउटपुट कितना वेल स्ट्रक्चर लग रहा है ना, अदरवाइज पूरा एक लाइन में ही आता, बहुत वर्स्ट लगता. नाउ नेक्स्ट लूप इज डू वाइल लूप. वाइल लूप एंड डू वाइल लूप दोनों सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि वाइल लूप में हमने क्या किया था कि पहले कंडीशन चेक की थी और फिर स्टेटमेंट्स पे गए थे, राइट. पर डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले जो स्टेटमेंट पे जाएंगे और उसके बाद में कंडीशन चेक होगी. मतलब एक बार तो एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, कंडीशन उसके बाद चेक होगी. कंडीशन फॉल्स होगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार तो एक बार होगी, एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट होगी स्टेटमेंट. ओके, सिंटैक्स है इसका डू एंड देन कर्ली ब्रेसेट, और फिर कर्ली ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है डू कंडीशन के अंदर ये एग्जीक्यूट होंगी फर्स्ट, उसके बाद में वाइल कंडीशन पे जाएगा. ठीक है, सेम ये फ्लो चार्ट भी ये चीज़ कह रहा है कि पहले स्टेटमेंट प्रिंट होंगी, उसके बाद में कंडीशन जाएगी. अगर कंडीशन ट्रू होती है देन गो टू स्टेटमेंट दैट विल प्रिंट अगेन, एंड इफ कंडीशन फॉल्स इट विल गेट आउट ऑफ द लूप. Okay, let's take an example. I have to declare a variable I and initialize its value as 0. Then it will go to do section and then it prints all the statement under statement do.
it print value of I first without checking any condition, and then increment of value of I, then go to while condition and check that I smaller than 5 or not. अब I की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है, देन फॉलो द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन टिल द कंडीशन गेट फॉल्स। ये चीज़ है। इस आउटपुट कैसे आएगा, 0 आएगा पहले। क्यों आएगा, क्योंकि अभी डू स्टेटमेंट पे सबसे पहले कंपाइलर गया है, आउटपुट ऑपरेटर से पता चला इसको आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू के हमें पता है 0 है, तो 0 प्रिंट कर दी, ठीक है, कंडीशन के पास ही गया ही नहीं। उसके बाद में यहाँ पे आई प्लस प्लस वैल्यू हो रही है, ठीक है, जब कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में आता है तो इसे पता चलता है आई प्लस प्लस हो गया, इट मीन्स आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसके बाद में कंडीशन चेक करेगा, आई स्मॉलर देन 5 है क्या, येस, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 जो है वो 5 से छोटा है, ये अगेन सी आउट प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, इस बार वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, एंड अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तो ये वैल्यू हमेशा ऐसे प्रिंट होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट लूप इज नेस्टेड लूप। इन दिस लूप वी कैन अप्लाई मल्टीपल लूप्स एट मल्टीपल टाइम्स। Nested loop means a loop statement inside another loop statement, and that is why nested loops are called loop inside loop. Now let's see syntax of nested loop for loop. Like this for loop is initialized as we have discussed earlier, but we have taken another loop, for loop, inside it. Okay, like this. पहले एक फोर लूप लिया है, उसके बाद में हम लोगों ने एक अंदर इसके और फोर लूप लिया है, तो मतलब एक के अंदर एक जब लूप होता है, हम लोग मल्टीपल लूप्स लेते हैं एक प्रोग्राम में, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। ये कॉम्बिनेशन होता है, किसी का भी हो सकता है, यहाँ पे फोर लूप ले रहे हैं, उसके बाद में वाइल लूप भी ले सकते हैं, डू वाइल लूप भी ले सकते हैं, साथ में मल्टीपल लूप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। नाउ आई हैव सम MCQs फॉर यू गाइज, एंड स्पेशल थैंक टू द पर्सन हु गिव मी सच अ ग्रेट आइडिया। Now, first MCQ is what is correct syntax of for loop, and the options are for bracket open initialization semicolon condition semicolon increment or decrement. Second option is for then increment decrement initialization and condition. This is totally wrong, क्योंकि जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लिखा हुआ है ना, इसके अंदर तो पहली जो एक्सप्रेशन है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस होता है ना वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी तो पहले इनिशियलाइज होता है, उसके बाद में कंडीशन चेक होती है, उसके बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, तो बी ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग है। सी ऑप्शन इज इनिशियलाइजेशन देन कोमा देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो ये भी रॉन्ग है, बिकॉज ये कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट एंड दैट्स नॉट राइट वे। compiler would give error if you use this syntax. Okay, so the option 1A is correct one, because we use semicolon here rather than colon, comma or any special character to separate initialization part from condition and to separate condition from increment or decrement part. Okay, so the option 1 is correct one. Next MCQ is, can a for loop contain another for loop? इसमें तो ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मतलब नेस्टेड लूप हमने अभी भी पढ़ा था कि एक लूप में हम मल्टीपल टाइम लूप्स यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ फोर लूप ही नहीं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो आंसर बी इज़ करेक्ट, एंड yes, we can use for loop inside another for loop, so the answer will be yes. So next MCQ is, a process of repeating the workflow is called, and the options are branching, looping, recursion and algorithm. ब्रांचिंग इंक्लूड्स गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, ये कीवर्ड होते हैं जिनका मीनिंग स्पेसिफाइड होता है। ओके, सो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQ, बिकॉज ये रिपीट नहीं करते प्रोसेस को। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द वर्क फ्लो, ठीक है, जो भी प्रोसेस को जो प्रोसेस होता है किसी काम को बार बार रिपीट करने का, उसको क्या कहा जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा लूपिंग, लूपिंग बार बार रिपीट करता है जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है, तो इसका आंसर है लूपिंग। एंड रिकर्जन की बात करें तो रिकर्जन एक फंक्शन होता है हु कॉल इट सेल्फ अगेन एंड अगेन, and it is an also important topic, and I will cover this topic too in a different video. Okay, and next thing is algorithm. It means that solve something step by step, that is algorithm. So all three options are wrong, and right answer is option B, that is looping. Okay, so the next question is, each pass through a loop is called a लूप, मतलब बार बार कोई चीज़ रिपीट होना। रिपीट होने का मतलब क्या होता है, इटरेशन, हम लोग इसको लैंग्वेज में इटरेशन कहते हैं। कोई चीज़ इटरेट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इसको दैट को बोलेंगे इटरेशन। एंड एन्यूमरेशन की तो आंसर जो होगा इसका इटरेशन होगा,
एलिमिनेशन में गलत लगा दिया मैंने, इस आंसर इज इटरेशन। एन्यूमरेशन एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, तो ये भी बार बार रिपीट प्रोसेस नहीं होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। एंड culmination, इट इज़ यूज व्हेन वी नीड टू एंड अ स्टेटमेंट, so it is also a wrong one. And so the right answer is option B, that is iteration. जब भी कोई स्टेटमेंट लूप के थ्रू पास होती है, अगेन एंड अगेन रिपीट होती है, उसे कहते हैं इटरेशन। So the next question is, which looping process is best used when the number of iteration is known? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कौन सी लूपिंग है जो हम लोग यूज़ करते हैं तब जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें ये चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, हमने 4 लूप पढ़े, फोर्थ वन तो कॉम्बिनेशन था, तो हमने 3 लूप जो मेन थे, फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप, उसमें से ऐसा कौन सा लूप है जिसमें हम लोग को वो कंडीशन पता होती है कि कितनी बार रिपीट करना है उसको, तो वो होता है फोर लूप। फोर लूप में हमें लोगों को पहले से पता होता है, हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स रॉन्ग, क्या बताना है कि कौन क्या गलत है। जो ये सिंटेक्स लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखी हुई है, फोर इंट के इज इक्वल्स टू 2 कॉमा के इज स्मॉलर देन और इज इक्वल्स टू 12 एंड के इंक्रीमेंट, क्या गलत लिखा है। ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन 1 में पढ़ा था ना हम लोगों ने कि यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ना कि कोमा यूज़ करते हैं। कोमा जैसे आएगा तो ये चीज़ कंपाइलर एरर दे देगा हमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द कोमा शुड बी सेमीकोलंस। ठीक है, एंड द नेक्स्ट MCQ इज विच लूपिंग प्रोसेस चेक द टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप। अब फोर लूप के अंदर क्या हो रहा था, सबसे पहले तो हम लोग इनिशियलाइज कर रहे थे, उसके बाद में हम लोग मतलब स्टेटमेंट प्रिंट होने से पहले नहीं था, इसमें पहले इनिशियलाइज करना होता है, फिर कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, है ना, उसके बाद में तो प्रिंट होती है ना चीज़ें, स्टेटमेंट्स हमारी। लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा कि ऐसी कौन सी लूपिंग प्रोसेस है जो लास्ट में कंडीशन चेक करती है, मतलब पहले स्टेटमेंट प्रिंट कर देगी, उसके बाद में कंडीशन चेक करेगी। इसका मतलब एक बार तो प्रिंट होगी ही होगी, इसका मतलब ये है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डू वाइल लूप में क्या होता है, डू का जो भी सेक्शन होगा, जो भी स्टेटमेंट होगी उसके अंदर, वो पहले प्रिंट होती हैं, उसके बाद में वाइल लूप पे जाता है, वाइल में जो भी कंडीशन होगी उसके बाद में उस कंडीशंस को चेक करता है, और उसके बाद में वो रिपीट होती है चीज़ें जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी। सो द राइट आंसर विल बी डू वाइल लूप। So this is the end of session. Thanks for watching.